Ignited Minds Tutorials, a renowned educational platform, has recently released a series of informative videos tailored for CBSE Class X students on the topic of matter and our surroundings. These videos aim to enhance students' understanding of the scientific concepts related to matter and its properties, covering essential aspects such as states of matter, physical and chemical changes, and the behavior of particles. The videos provide a comprehensive explanation of the subject matter. The engaging visual content and simplified explanations make it easier for students to grasp complex ideas. By delving into the microscopic world of atoms and molecules, Ignited Minds Tutorials help students understand the behavior of different substances and their interconversion. These videos also shed light on the various factors affecting the states of matter, such as temperature and pressure. With matter and our surroundings being an important topic in the CBSE Class X science curriculum, Ignited Minds Tutorials is committed to equipping students with the knowledge and skills needed for academic excellence. These videos serve as a valuable resource for students to enhance their understanding, reinforce concepts, and consolidate their learning by providing comprehensive and accessible educational content. Ignited Minds Tutorials is empowering students to excel in their academic pursuits and harness the power of knowledge. With their dedication to delivering quality education, they continue to ignite young minds, guiding them towards success in the realm of science and beyond. ओके बच्चा पार्टी अपन कर रहे थे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स. ठीक है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, लिक्विड टू सॉलिड, the process of changing. What is liquid to solid? Basically बच्चा पार्टी, the process of changing a liquid into a solid by cooling is called freezing. ठीक है, ये जो प्रोसेस है आपका लिक्विड टू सॉलिड में चेंज होना, तो सॉलिड को आपने हीट किया, मेल्ट हो गया, ये इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे? मेल्टिंग टू लिक्विड. एंड देन वी हीट लिक्विड एंड दिस चेंजेस इनटू गैस. ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब आपका क्या? वेपराइजेशन. देन इट इज कूल्ड. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग. इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? बोलो, इस कूलिंग के प्रोसेस को क्या बोलेंगे? उस दिन हमने डिस्कस किया था, कंडेंसेशन. दिस इज नोन एज कंडेंसेशन. ठीक है, सो द प्रोसेस ऑफ हीटिंग so that a solid changes to liquid at its melting point is known as melting. The process of heating a liquid so that it changes to gas at its boiling point is known as vaporization. The process of cooling a gas to a liquid is known as condensation. The process of cooling a liquid to a solid is known as freezing. Are we clear to this one, people? ठीक है, okay. So this process of changing a liquid into a solid by cooling is known as freezing. तो ये आपका वाटर हो गया. वाटर को भाई साहब हमने क्या किया? आइस. ठीक है, तो हम बोलते हैं ना फ्रीज में रख दो भाई साहब, पानी बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा. सो वाटर बेसिकली चेंजेस इनटू आइस. फ्रीजिंग इज द रिवर्स ऑफ मेल्टिंग. फ्रीजिंग रिवर्स ऑफ मेल्टिंग, मेल्टिंग का रिवर्स है. इसको मेल्ट करोगे तो वाटर बनेगा, इसको फ्रीज करोगे तो आइस बन जाएगा. आर वी क्लियर टू दिस वन, पीपल? ओके ओके ओके. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ठीक है, टेक सम क्रश्ड आइस इन अ बीकर. एक क्रश्ड आइस ले लिया हमने एक बीकर में. सस्पेंड अ थर्मोमीटर इन इट. आपने भाई साहब इसमें एक थर्मोमीटर को सस्पेंड कर दिया है. ठीक है, नोट द टेम्परेचर ऑफ आइस. अभी आप यहाँ पे क्या करेंगे? टेम्परेचर ऑफ आइस को नोट करेंगे. ठीक है, तो लेट्स से 0 डिग्री सेंटीग्रेड है. ठीक है, नाउ हीट द आइस जेंटली बाय यूजिंग अ स्मॉल फ्लेम ऑफ द बर्नर. आप भाई साहब जेंटली इसको हीट कर रहे हैं. मैंने आपसे पूछा था और उस दिन आपको समझाया था, इसमें जो चेंज होगा, हाउ विल यू नोटिस दिस चेंज? तो आपको क्या पे क्या चेंज मिलेगा? टेल मी. हाँ, टेम्परेचर राइज कब होगा? पूरा मेल्ट होगा तब टेम्परेचर में राइज दिखेगा. उसके पहले आपको टेम्परेचर में राइज नहीं दिखेगा. जब तक आपका एक भी आइस रहेगा ना, तब तक आपको कोई भी टेम्परेचर राइज नहीं दिखेगा. ठीक है, टिल इवन अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ आइस इज लेफ्ट, you will not see any temperature rise, which means that the heat that you are supplying is not getting into temperature rise. ठीक है, it is not getting converted into rise of temperature of the mixture. ठीक है, मतलब वो टेम्परेचर राइज में नहीं कन्वर्ट हो रहा है. इसका मतलब वो हीट कहां जा रहा है? ओके, पार्टिकल्स ब्रेक करने के लिए. तो मतलब आप एक यू आर गोइंग इनटू काइनेटिक थियरी ऑफ मैटर. सिंपल चीज में क्या बोलेंगे हम? सर वो मेल्ट होने के लिए.
हाँ, तो क्या होगा, स्टेट कन्वर्जन फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है, स्टेट चेंज में जा रहा है। और इसलिए इस टाइप के हीट को अपन क्या बोलते हैं, जिस हीट को आप महसूस नहीं कर सकते हैं, मतलब जिस हीट को आप भाई साहब टेम्परेचर में नहीं देख सकते। थर्मोमीटर इस हीट को महसूस नहीं कर पा रहा है क्योंकि हीट कहीं और चला जा रहा है, ठीक है, ये हीट कहीं और चला जा रहा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जैसे आप भाई साहब घर से निकले, क्लास जा रहे हैं, पढ़ाई करेंगे, लेकिन यार दोस्त बीच में मिल गए और पत्ते खेलने बैठ गए आप, तो ये क्या हो गया भाई साहब, आप यहाँ तक पहुँचे ही नहीं, ठीक है। फिर जैसे यहाँ पे क्लास छूटता है, आप घर पहुँच गए, घर वाले सोचे कि आप भाई साहब पढ़ के आए हैं, है ना। सो इस चीज़ को अपन क्या बोलेंगे, आपने इस चीज़ को गोपनीय रखा है, आपने इस चीज़ को भाई साहब, मतलब ये कोई आपका पढ़ाई में कुछ हुआ ही नहीं ना, there is anything that you gained in knowledge, no, ठीक है, during that time which you had spent outside you have not gained anything in your knowledge, ठीक है। सो आपका ये गुप्त हीट हो जाएगा, latent heat, it cannot be measured in terms of thermometer scale, ठीक है। now the heat, तो गुप्त हीट इसको हम बोलते हैं latent heat, मतलब गुप्त हीट, सीक्रेट हीट, ठीक है, latent मतलब सीक्रेट, आपको दिखेगा नहीं थर्मोमीटर में, ठीक है। ओके, now heat dies gently by using a small flame on the burner, ठीक है। so as long as there remains even a little of ice in the beaker there is no rise in temperature। देखो टुन्नू टुन्नू से ऐसे आइस हो गए, अभी बड़े बड़े आइस से अब ये टुन्नू टुन्नू आइस हो गए, लेकिन थोड़ा भी आइस जब तक रहेगा आपको वो टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही दिखेगा, इन स्पाइट ऑफ द हीट दैट इज गेटिंग सप्लाइड टू इट। किसी भी चीज में अगर आप हीट सप्लाई करते हो तो उसका टेम्परेचर बढ़ना ही बढ़ना है, लेकिन यहाँ पे आपको यू विल नॉट नोटिस अ सिंगल डिग्री राइज इन टेम्परेचर until and unless the entire ice has melted people, ठीक है, क्लियर है। इसी को अपन क्या बोलेंगे, तो इसका मतलब ये हीट कहीं और ही जा रहा है भाई साहब, हीट इज नॉट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू राइज इन टेम्परेचर, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू मैटर का स्टेट चेंज। आर वी क्लियर? एंड दैट्स द रीजन वी नेम दिस एज लेटेंट हीट। लेटेंट मींस गुप्त, ठीक है, सीक्रेट हीट। as long as there remains even a little of ice in the beaker there is no rise in temperature during the melting of ice। are we clear on this one people? okay, the heat which is going into ice but not increasing its temperature is the energy required to change the state of ice from solid to liquid. This is known as the latent heat of fusion of ice, okay? So this heat which is actually going into the beaker but not causing a single degree rise in temperature until unless the entire ice has melted is known as latent heat of fusion। इसको नोट कर लीजिए people, ठीक है। ठीक है, आर वी क्लियर? क्लियर क्लियर क्लियर। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पीपलम, द हीट विच इज गोइंग इनटू आइस, तो आइस में हीट तो जा रहा है बट नॉट इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर भाई साहब इंक्रीज नहीं हो रहा है, इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ आइस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। तो यही एनर्जी रिक्वायर्ड है टू चेंज द स्टेट ऑफ आइस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, दैट इज वाटर। दिस इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। इसी को अपन क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। आर वी क्लियर थ्रू दिस वन पीपलम? एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट इट? क्लियर क्लियर क्लियर। आगे बढ़ा जाए, बहुत बढ़िया भाई साहब, मुस्तैदी के साथ आगे बढ़ते रहिए। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग ऑफ अ सॉलिड, इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन है ये, ठीक है। दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन। सो व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? दिस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग ऑफ अ सॉलिड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स। ओके, अभी आप बोलेंगे ये जूल्स क्या होता है भाई साहब? तो हर चीज का एक यूनिट होता है, हर चीज का यूनिट होता है। जैसे फोर्स को आप मेजर करते हो किसमें? फोर्स को आप मेजर करते हो न्यूटन्स में, ठीक है। देन लेट्स से लेंथ को आप कैसे मेजर करते हो? मीटर्स में, ठीक है। और लेट्स से आप मास को किस में मेजर करते हो भाई साहब? केजी में। तो इसी तरह से आपके एनर्जी को हम मेजर करते हैं जूल्स में, ठीक है। एनर्जी का यूनिट
एनर्जी का, बच्चा पार्टी, एनर्जी का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? एनर्जी का एसआई यूनिट होगा जूल्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? एनर्जी का एसआई यूनिट होगा जूल्स। तो आपका हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो हीट का भाई साहब क्या हो जाएगा? जूल्स। ठीक है, इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ द सॉलिड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट टू लिक्विड। ठीक है, 1 केजी सॉलिड को भाई साहब उसके मेल्टिंग पॉइंट में लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट चाहिए विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, सो व्हाट इज लेटेंट हीट? आप में समझ लो 1 केजी आइस लिया है, इस 1 केजी आइस को देखो देखो, इसको ऐसे समझो, लिख लेना बाद में, मैं बोलूंगा आपको कब लिखना है। समझ लो आपने 1 केजी ऑफ आइस लिया है, चाहे वो टुकड़ों में हो चाहे वो एक पीस हो। ठीक है, 1 केजी ऑफ आइस को आप कितना हीट दोगे? हाउ मच ऑफ हीट? ठीक है, दैट यू नीड टू गिव टू कन्वर्ट इट इनटू वाटर। ठीक है, एट, ये 1 केजी ऑफ आइस क्या है? एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये वाटर भी क्या है? एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। समझ में आ रहा है? जब तक ये पूरा वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। इट विल नॉट शो अ सिंगल डिग्री राइज इन टेम्परेचर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? सो द अमाउंट ऑफ हीट that you require to convert 1 kg of a substance from its solid state to its liquid state at its melting point without showing a single degree rise in temperature is known as latent heat। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है, देखो यहाँ पे अपन इसको ऐसे लिखते हैं, अमाउंट ऑफ हीट, ऐसे इसको जोड़ लो इस डेफिनेशन को, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया, टू कन्वर्ट 1 केजी ऑफ अ सब्सटेंस, 1 केजी ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, कन्वर्ट है तो किससे किस में कन्वर्ट करना है? फ्रॉम इट्स सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, फ्रॉम इट्स सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 केजी ऑफ अ सब्सटेंस from its solid to liquid state at its melting point, at its melting point, ठीक है, without showing a single degree of rise in temperature। ये हो जाएगा आपका क्या? दिस विल बी बेसिकली बच्चा पार्टी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जो आपके इंग्रेडिएंट्स हैं इस आंसर में, जो कीवर्ड्स हैं वो क्या क्या हैं? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 केजी ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। ठीक है, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट शोइंग अ सिंगल डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, विदाउट शोइंग अ सिंगल, ये आपके कीवर्ड्स हैं। बाकी का सेंटेंस आप कैसे भी लिखेंगे लेकिन ये कीवर्ड्स होने चाहिए। दिस इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब 1 केजी सब्सटेंस को, जैसे देखो यहाँ पे आपने क्या किया, आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपके पूरे को वाटर में कंप्लीट कन्वर्ट करने के लिए, 1 केजी आइस को पूरे वाटर में कन्वर्ट करने के लिए एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, the amount of heat that you need to supply is known as its melting point। Are we clear to this one people? ठीक है, लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए भाई साहब, कीवर्ड्स है आपके। Latent is the amount of heat required to convert 1 kg of the solid at its melting point to liquid without a single degree rise in temperature। Okay, now let's proceed ahead people। ठीक है, the latent heat of fusion of ice is how much? 3.34 into 10 raised to 5 joules per kilogram। ठीक है, तो 1 किलोग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए कितना हीट चाहिए रहेगा बच्चा पार्टी? 3.34 into 10 raised to 5 joules। So this will be basically 3.34 into 10 raised to 5 joules। ठीक है, मतलब 1 केजी आइस को मेल्ट करवाने के लिए, 1 केजी आइस को मेल्ट करवाने के लिए किसमें? At its melting point, that is 0 degree centigrade, the amount of heat that you need to give would be 3.34 into 10 raised to 5 joules। इतना हीट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? The amount of heat that you require to give 1 kg of ice to melt into water at 0 degree centigrade, मतलब without any rise in temperature, would be 3.34 into
10⁵ जूल्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो 3 3 4 1 2 और 0 0 1 2 3 4 5 इतने जूल्स ऑफ हीट लगेंगे आपको, ठीक है। दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड। क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? एनी क्वेश्चन सम पीपल? हम ठीक है, दिस हीट एनर्जी इज यूज्ड अप। तो ये वाला जो हीट एनर्जी है वो कहां पे यूज्ड अप हो रहा है, ये जो आप हीट सप्लाई कर रहे हैं ये बेसिकली कहां पे यूज हो रहा है? दिस हीट एनर्जी is used up in changing the state of the solid substance by overcoming the force of attraction between its particles। तो ये चेंज ऑफ स्टेट में यूज हो रहा है, ठीक है। क्योंकि सॉलिड में आपको देखो, आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर में क्या पढ़ा कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं दे आर बाउंड टुगेदर बाय अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड इन लिक्विड्स these forces become a little weaker, so there is certain amount of distance that is created between these same particles, ठीक है। तो ये जो एक दूसरे से दूरियां बनाना है, ठीक है, द हीट एनर्जी ये किसमें यूज्ड अप हो रहा है? द चेंजिंग द स्टेट ऑफ द सॉलिड substance by overcoming the force of attraction। So obviously all these particles all across the solid will have a very strong force of attraction, ठीक है। So what you are doing is basically supplying heat, and when you are supplying heat it is getting converted into liquid। The heat energy is used up in changing the state of the solid substance by overcoming the force of attraction between the particles। तो ये overcome कर रहे हैं हम force of attraction between the particles। Are we clear on this one people? हम समझम, ठीक है। तो आपका इसीलिए आपको यहाँ पे थर्मोमीटर में कोई राइज नहीं मिल रहा है। Are we clear on this one people? हम देखो ऐसा है, आपको घर में खाना दिया गया, आपको खाना पसंद नहीं है, आप क्या कर रहे हैं? एक डस्टबिन रखा है आपने, अरे खाना हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो मतलब खाना गया कहाँ? आपके पेट में नहीं गया है। आप क्या पेट में स्टमक फिल होगा? आपका नहीं होगा, आपको फिर से भूख लगेगी, ठीक है। सेम यहाँ पे हो रहा है, आपको हीट दिया जा रहा है लेकिन टेम्परेचर में राइज नहीं दिखेगा, क्योंकि ये हीट किसी और जगह चला गया है। कहाँ पे चला गया है? सॉलिड के बीच में जो पार्टिकल्स में जो फोर्स है उसको तोड़ने में चला गया है, बिकॉज नाउ इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। सो दिस अमाउंट ऑफ हीट is not showing any rise in temperature because that amount of heat has gone in breaking the bond that existed between the solid particles, ठीक है, and change its state into liquid state। clear है? Are we clear on this one people? This heat energy is used up in changing the state of the solid substance by overcoming the force of attraction between its particles। okay, ice at 0 degree centigrade is more effective in cooling a substance than water। देखो कि अगर समझे इनके हाथ में हमने एक आइस का क्यूब रख दिया और इसको बंद कर दिया, ठीक है, ठीक है, और छोड़ दिया भाई साहब, ठीक है। अभी इसके हाथ को मैंने पानी में डुबो दिया जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। कौन जल्दी ठंडा होगा? मतलब इनका हाथ तो ठंडा हो रहा है, हाथ के अंदर आइस रखा हुआ है जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, और इसको छोड़ के हमने मतलब हाथ, मतलब समझ लो ये लेफ्ट हैंड है और राइट हैंड है। एक हमने आइस लिया हुआ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, दूसरा हाथ आपने किस में डाल दिया है? पानी में डाल दिया जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कौन ज्यादा जल्दी ठंडा होगा? आइस वाला हाथ ज्यादा जल्दी ठंडा, लेकिन टेम्परेचर दोनों में एक ही है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्यों ऐसा होगा कि आइस वाला जल्दी ठंडा होगा? हाँ, नहीं, मॉलिक्यूल्स पास मास में, दैट्स नॉट द रीजन। व्हाई विल इट बेसिकली कूल फास्टर? वाटर है तो टाइम पास कर रहा है। हाँ, व्हाई विल इट कूल फास्टर? तो देखो इन्होंने जब वो ये जो आइस है ना, इसको भाई साहब सराउंडिंग से हीट चाहिए, ये फटाफट से खींचेगा, सराउंडिंग से हीट खींचेगा। कितना हीट चाहिए भाई साहब? आपने देखा 3.35 इंटू कितना था, कितना लिखा है मैंने? 3 इंटू 10⁵ जूल्स। इतना हीट चाहिए इसको सराउंडिंग से वाटर में कन्वर्ट होने के लिए। वाटर को इतना हीट नहीं चाहिए, वाटर में धीरे धीरे टेम्परेचर राइज होगा, लेकिन ये बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है हीट की। सो इट विल एक्चुअली एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम ऑल इट्स सराउंडिंग्स। और क्योंकि इसके हाथ में आइस का क्यूब है, तो ये इसके हाथ का जो हीट है वो आइस निचोड़ लेगा ताकि ये वाटर में कन्वर्ट हो सके, ठीक है, बिकॉज दैट इज लेटेंट हीट। ये आपका क्या है? लेटेंट हीट है। समझ में आ रहा है ये? सो दिस आइस विच इज इन हिज हैंड्स is going to squeeze the heat from his hands and get converted into water, and that's a huge requirement of heat, that is 3.34 into 10⁵ joules, ठीक है। ये फटाफट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है। तो इसीलिए आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज एन मोर इफेक्टिव कूलेंट देन वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। भले ही दोनों का टेम्परेचर एक है, लेकिन
वाटर जितनी जल्दी हीट खींचेगा उससे कहीं ज्यादा मात्रा में आइस खींचेगा, क्योंकि आइस का लेटेंट हीट बहुत ज्यादा है, विच इज 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके। सो लेट्स सी, फॉर मेल्टिंग ईच किलोग्राम ऑफ आइस, 1 केजी आइस को मेल्ट करने के लिए latent heat is how much? 3.34 into 10⁵ joules from the substance, and hence cools the substance more effectively. इसलिए वो उस substance को effectively cool करेगा। Are we clear on this one people? So ice is a better coolant than water at the same temperature, that is 0°C. Okay. Ice is a better coolant than water. Are we clear on this one people? समझम। Okay. A piece of ice held in our hand feels very cold. आपको भाई साहब ठंडा फील क्यों होता है? जब आप आइस को हाथ में रखते हैं तो ठंडा फील क्यों होता है? क्योंकि आइस जो है आपके हाथों से हीट खींच रहा है। समझ में आ रहा है? और कितना हीट खींच रहा है? देखो, 1 केजी आइस को इतना हीट चाहिए वाटर में मेल्ट होने के लिए, तो वो सराउंडिंग से हीट खींच रहा है और आपका हाथ उसके साथ कॉन्टैक्ट में है, सो इट विल बी बेसिकली विथड्रॉइंग द हीट फ्रॉम योर हैंड्स, एंड दैट्स द रीजन इट विल फील कोल्ड। अ पीस ऑफ आइस हेल्ड इन आवर हैंड feels very cold. It takes latent heat required for melting from our hand. तो हमारा हाथ से वो क्या ले रहा है भाई साहब? Latent heat ले रहा है, ठीक है? It is basically taking latent heat which is required for melting from our hand. Our hand loses heat of ice making us feel cold, ठीक है? तो our hand loses heat of ice making us feel cold. That is basically how we feel cold. Are we clear on this one people? समझम। बहुत बढ़िया। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। नाउ व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? अगर समझ लो भाई साहब आपने, तो अभी आपने समझा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट दैट यू रिक्वायर टू बेसिकली मेल्ट अ सब्सटेंस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट और चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट without showing a single degree rise of temperature is known as latent heat. Latent heat of ice is 3.34 into 10⁵ joules. Are we clear? Okay. Now let's look at latent heat of vaporization. Take some water in a beaker, ठीक है? Suspend a thermometer in it. आपने इसमें सस्पेंड कर दिया थर्मोमीटर। अभी आप इसको क्या कर रहे हैं? हीट दिस वाटर बाय यूजिंग अ बर्नर। आप भाई साहब हीट कर रहे हैं इसको, ठीक है? ओके, सो व्हाट इज इट? नोट दैट दिस टेम्परेचर, नोट इट्स टेम्परेचर आफ्टर एवरी मिनट। आप इस टेम्परेचर को बेसिकली नोट कर रहे हैं, ठीक है? इसके टेम्परेचर को। सो व्हाट डू यू सी? ठीक है, एज द टेम्परेचर राइजेस ग्रेजुअली अंटिल 100°C इज रीच्ड। तो आप देखोगे टेम्परेचर धीरे बढ़ेगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा? जब आप वाटर को हीट करना चालू करोगे तो लेट्स से रूम टेम्परेचर में है, रूम टेम्परेचर आपका 20°C होता है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100°C। तो जैसे जैसे आप हीट सप्लाई करोगे तो आपको दिखेगा कि भाई साहब यहाँ पे टेम्परेचर राइज होता जाएगा, ठीक है? वाटर को जब आप हीट कर रहे हो, यू विल सी, तुमको बहुत जोर से नींद आ रही है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने भाई साहब हीट करना चालू किया इसको। When we start heating it, we would observe that there is a rise in temperature, ठीक है? When you start heating it, you will see a rise in temperature. Let's say the water initially was at 20°C, जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है। आपने इसको हीट करना चालू किया तो 20 से 25, 25 से 30, 30 से ऐसा करते करते वो 100° तक पहुंचेगा। At this temperature, water will start boiling. You will see bubbles getting formed at its surface. So boiling, this is basically what? Boiling point. Boiling point of water. Now it starts getting converted into gas. ठीक है? It starts getting converted. So again the same phenomena will happen. इसके पहले आपने क्या देखा? Solid से liquid में conversion देखा at its melting point. ठीक है? Without a single degree rise in temperature. This is known as latent heat of fusion. Latent heat of fusion. अभी आपने क्या देखा भाई साहब? लिक्विड से गैस में कन्वर्जन देख रहे हो, लिक्विड से गैस में कन्वर्जन देख रहे हो। सो until and unless the entire liquid is, इसको बंद कर दीजिए वरना आप फोकस नहीं कर पाएंगे। Until unless the entire liquid is actually converted into gas, ठीक है, you will not show a single degree rise in temperature. So what will happen at 100°C? 100°C में जब तक ये पूरा लिक्विड गैस में कन्वर्ट ना हो जाए तब तक in spite of supplying heat you would not see a single degree rise in temperature. So इसका मतलब हीट कहां पे जा रहा है? Where is the heat going? ब्रेकिंग द पार्टिकल्स और कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट। ठीक है, आपने देखा भाई साहब लिक्विड स्टेट में ऐसा थोड़ा थोड़ा तो भाई साहब आपका होता है, ठीक है, और गैसियस स्टेट में क्या हो जाता है? बहुत सारा स्पेस हो जाता है, अ लॉट ऑफ स्पेस इज देयर। ठीक है, सो एज द टेम्परेचर राइजेस ग्रेजुअली until 100°C is reached, at 100°C water boils and starts changing into steam.
आर वी क्लियर थ्रू दिस वन पीपल? हम समझ में आतम, ठीक है। सो आप देखोगे कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे विच इज बेसिकली द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है, until and unless the entire mass of water is not converted into steam, this thermometer is not going to show a single degree rise in temperature. इसका मतलब क्या हो गया? For that amount of time, whatever heat you have supplied has gone in interconversion of matter from liquid to gaseous state. इसी को अपन क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो जैसे आपने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को डिफाइन किया है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स लिक्विड टू गैसियस स्टेट इज सो हाँ, liquid to gaseous state without showing a single degree rise in temperature is known as latent heat of vaporization, ठीक है। चलिए देख लेते हैं भाई साहब हम यहाँ पे इसका डेफिनेशन। सो व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन? द अमाउंट of heat, the amount of heat required, the amount of heat required to convert 1 kg of a substance, to convert 1 kg of a substance from its liquid to gaseous state, from its liquid to gaseous state, ठीक है, without showing a single degree, without showing a single degree of rise in temperature, without showing a single degree of rise in temperature is known as latent heat of vaporization, is known as latent heat of vaporization, ठीक है। So the amount of heat required to convert 1 kg of a substance, 1 kg of a substance from its liquid to gaseous state, from its liquid to gaseous states without showing a single degree rise in temperature is known as latent heat of vaporization. These are the keywords that you cannot miss in the answer. क्या ये समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या हो गया? जितना भी पानी आपने लिया है, जब तक वो पूरा का पूरा पानी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, until unless the entire thing gets converted into gaseous state, ठीक है, without a single degree rise in temperature, ठीक है, वो आपका भाई साहब the thermometer is not going to show any rise in temperature. Are we clear to this one people? हम ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए भाई साहब जरा। डन 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 डन, ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब, ठीक है, ओके। सो as the heat supply is continued, there is no rise in temperature during the boiling of water. The thermometer reading remains at 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो थर्मोमीटर रीडिंग आपको कितना दिखाएगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड का दिखाएगा, ठीक है। इट्स गोइंग टू शो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ वाटर अट्रैक्ट one another with certain forces
these forces of attraction hold the water particles together in the liquid state. ठीक है, तो the particles of water attract one another with certain forces. भाई साहब आपका देखो यहाँ पे ये जो particles of water है, they are holding each other, although there is a minimum amount of spacing between them, more than what happens in solid state. ठीक है, so they are held together. Now when you happen to heat them, this gets dispersed. तो यहाँ पे भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया. अभी ये भाई साहब फ्री हो गए हैं, they are not held to each other anymore. ठीक है, so the particles of water attract one another within certain forces. These forces of attraction hold the water particles together in the liquid state. ठीक है, the heat supplied to water during boiling is used to overcome the forces of attraction between water particles so that they become free and change into gas. So they become free and basically change into gaseous particles. ठीक है, they basically change into gaseous particles. This latent heat does not increase the kinetic energy of water particles and hence no rise in temperature takes place. ठीक है, तो इसमें भाई साहब कोई भी राइज ऑफ टेम्परेचर नहीं होगा. काइनेटिक एनर्जी क्यों बात कर रहे हैं हम, क्योंकि भाई साहब अभी हम बात कर रहे हैं लिक्विड की. ठीक है, सो देयर इज नो राइज ऑफ टेम्परेचर दैट टेक्स प्लेस. ओके. These forces of attraction hold the water particles together in the liquid state. So whatever heat you are supplying is actually going in breaking the forces of attraction. The amount of heat that you are supplying is actually going in breaking the forces of attraction that happen to exist between the water particles so that they become gaseous. Clear? Are we clear? Okay. So the latent heat of vaporization of a liquid, what is it? The quantity of heat in joules actually, ठीक है, required to convert कितना 1 kilogram of the liquid at its boiling point to vapor or gas without any change in temperature. ठीक है, so the amount of heat that you require in order to convert 1 kilogram of a liquid to its gaseous state without showing a single degree rise in temperature at its boiling point is known as latent heat of vaporization. ठीक है, latent heat of vaporization. क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है पीपल हम? ठीक है, the latent heat of vaporization of water कितना है, 22.5 into 10 raised to 5 joules per kilogram. ठीक है, 22.5 into 10 raised to 5 joules per kilogram, ये हो गया आपका latent heat of vaporization of water. ठीक है, ओके. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है, देखो केल्विन में. केल्विन क्या करते हैं आप देखो, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का कितना हो जाएगा बोलो, 273 प्लस 100. केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ 273 ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा आपका 373 केल्विन. आर वी क्लियर भाई साहब? ओके. Latent heat of vaporization, the burns caused by steam are much more severe than those caused by boiling water. देखो स्टीम कितने में है भाई साहब आपका, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है. ठीक है, और बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर कितना है, ये भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड है. ठीक है, अगर स्टीम का बर्न्स देखोगे वो ज्यादा सिवियर होते हैं देन बॉइल, वो दोनों का टेम्परेचर सेम है. तो क्यों ऐसा होता है कि आपके स्किन में ज्यादा बड़े बॉइल्स या रैशेस तब आते हैं जब when it is exposed to steam rather than when it is exposed to water at the same temperature. Why will this happen? बोलिए भाई साहब. काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो ज्यादा आपके पार्टिकल्स हिट करेंगे. ठीक है, लेकिन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन देखिए क्या होता है. ठीक है, बोथ ऑफ देम आर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. व्हेन वाटर चेंजेस इनटू स्टीम इट अब्सॉर्ब्स लेटेंट हीट. तो वो क्या कर रहा है भाई साहब, हीट अपने सराउंडिंग से अब्सॉर्ब कर रहा है. वाटर अपने सराउंडिंग से पूरा हीट निचोड़ के क्या बन जाएगा, और कितना हीट अब्सॉर्ब कर रहा है भाई साहब, 22.5 into 10 raised to 5 joules, which is a very huge amount of heat. अपने सराउंडिंग से वो इतना हीट अब्सॉर्ब कर रहा है in order to get converted into steam. Water at 100 degree centigrade, in order to get converted into steam at 100 degree centigrade, is basically absorbing this amount of heat, that is 22.5 into 10 raised to 5 joules. ठीक है, क्लियर है? सो अब अभी आपके सराउंडिंग्स में क्या है, हाथ है, तो इसमें स्टीम आ रहा है, तो ये भाई साहब वाटर अब्सॉर्ब कर रहा है फटाक से. ठीक है, सो स्टीम कंटेन्स मोर हीट इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट देन बॉइलिंग वाटर. तो स्टीम में ज्यादा हीट होगा. समझ में आ रहा है? बॉइलिंग वाटर से आपके स्टीम में कितनी ज्यादा एनर्जी होगी पर केजी, आपका 22.5 into 10 raised to 5 joules, इतनी ज्यादा एनर्जी होगी. स्टीम विल हैव मोर एनर्जी क्योंकि इतना लेटेंट हीट उसमें है, उसने गुप्त रूप से उसको अब्सॉर्ब किया, तब जाकर वो स्टीम में कन्वर्ट हुआ है.
तो ऑल्दो बोथ आर शोइंग द सेम टेम्परेचर, नींद आ रही है, ऑल्दो बोथ आर शोइंग द सेम टेम्परेचर, स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड विल हैव लेटेंट हीट अलॉन्ग विद इट, ठीक है, तो इस विल हैव लेटेंट हीट अलॉन्ग विद इट एंड हेंस द टेम्परेचर विल बी मोर, और इसीलिए भाई साहब क्या होगा, द बर्न्स दैट आर कॉज्ड बाय स्टीम आर मोर सिवियर देन द बर्न्स दैट आर कॉज्ड बाय वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है. Okay, now we will look at change of state, okay, and what is the effect of state. Okay, the phase or state of matter can change when the pressure changes. अगर आपके भाई साहब प्रेशर में कोई चेंज आता है तो फेज और स्टेट ऑफ मैटर में चेंज आएगा, ठीक है, जस्ट वन मोमेंट. ओके, द फेज और स्टेट ऑफ मैटर कैन चेंज व्हेन द प्रेशर चेंजेस. अगर प्रेशर में चेंज आएगा तो ये फेज ऑफ मैटर. गैसेस कैन बी लिक्विफाइड, बच्चा बॉडी, गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर, ठीक है. समझ लो कोई गैस है, देखो गैस में क्या है, आपका जो पार्टिकल्स है वो चितर बितर हैं ऐसे, है ना, सब आवारा घूम रहे हैं ऐसे. अभी समझ लो ये गैस एक कंटेनर में है और ये इसका लिड है और इस पे आपने वेट्स रख दिए. इस पे आपने अगर वेट्स रखे तो ये क्या होगा, नीचे जाएगा. जब ये भाई साहब नीचे जाएगा, जब ये नीचे चला गया तो व्हाट विल हैपन, दीज पार्टिकल्स विल कम क्लोजर. और आपने देखा कि लिक्विड्स में पार्टिकल्स कम क्लोजर रादर इन गैसेस, तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. सो व्हेन यू इंक्रीज द प्रेशर एंड यू लोअर द टेम्परेचर, देखो प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, व्हेन यू इंक्रीज द प्रेशर इन गैसेस व्हाट विल हैपन, पार्टिकल्स कम क्लोजर, पार्टिकल्स ऑफ गैस कम क्लोजर, ठीक है, दे विल बेसिकली कम क्लोजर. एंड व्हेन यू डिक्रीज द टेम्परेचर, और जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते हो तो क्या होगा, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस पार्टिकल्स, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस पार्टिकल्स इज गोइंग टू डिक्रीज, ठीक है. व्हेन यू इंक्रीज द प्रेशर द पार्टिकल्स आर गोइंग टू कम क्लोज टुगेदर, एंड व्हेन यू डिक्रीज द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस पार्टिकल्स विल डिक्रीज. क्या ये समझ में आ रहा है. तो इसमें हो क्या रहा है, जब आप प्रेशर को बढ़ा रहे हो, पार्टिकल्स ऑफ द गैस कम क्लोजर टुगेदर, एंड जब टेम्परेचर को घटा रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसेस पार्टिकल्स विल ड्रॉप डाउन. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आ रहा है ये, ठीक है. ओके, सो गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर, ठीक है. क्योंकि आपका देखोगे अगर प्रेशर की बात करें तो आप अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात करें, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है, ये हो गया आपका सॉलिड्स का, ये सबसे कम होता है. इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इन लिक्विड्स का इससे ज्यादा होता है, और लिक्विड्स गैसेस का सबसे ज्यादा होता है. तो जैसे ही आपने प्रेशर बढ़ाया, पार्टिकल्स ऑफ गैस कम क्लोज टुगेदर, तो यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या हो गया, कम हो गया. गैस था, उसके बीच में जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस था वो कम हो गया, तो दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है. ओके, अभी हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस इज मोर देन kinetic energy of liquids, and this is more than kinetic energy of solids. Kinetic energy of gases is more than kinetic energy of liquids, and this is more than kinetic energy of solids. Are we clear through this one people? समझम absolutely clear. Okay, clear है people. Okay, तो आपका क्या हुआ यहाँ पे, देखो जैसे आपने टेम्परेचर को डाउन किया तो काइनेटिक एनर्जी गिर गई. काइनेटिक एनर्जी गिर गई तो मतलब शिफ्ट हो गया, देखो गैसेस से लिक्विड में. जैसे ही आपने भाई साहब प्रेशर को बढ़ाया तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम हो गया, तो मतलब गैसेस से लिक्विड में शिफ्ट हो गया. समझ में आ रहा है. सो व्हेन यू इंक्रीज द प्रेशर एंड व्हेन यू लोअर डाउन द टेम्परेचर, गैसेस गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड्स, ठीक है. गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग द टेम्परेचर. क्लियर हम पीपल, ओके, ठीक है. तो आपका देखो एक सिलेंडर है और ये पिस्टन है, समझ लो इसमें कोई गैस भरा है आपने. अभी आप क्या कर रहे हो, इसमें प्रेशर बढ़ा रहे हो. सो व्हाट विल हैपन, ये आपके पार्टिकल्स है, गैस के पार्टिकल्स है जो चितर बितर हैं. जब आप प्रेशर को बढ़ाओगे और इस पिस्टन को लोअर डाउन करोगे तो क्या हो जाएगा, गैस पार्टिकल्स विल कम क्लोज टुगेदर, ठीक है. सो व्हाट विल हैपन, देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस. व्हेन यू हैपन टू इंक्रीज द प्रेशर व्हाट विल हैपन, पिस्टन पुश्ड इन प्रेशर इज अप्लाइड, तो आपका क्या हो जाएगा, दीज पार्टिकल्स विल कम क्लोज टुगेदर, ठीक है. गैस पार्टिकल्स कम गेट वेरी क्लोज. While applying pressure to liquefy gases, it is necessary to cool them to take away the heat produced during compression. ठीक है. तो कंप्रेशन भाई साहब ये हीट प्रोड्यूस होगी और हीट क्या हो जाएगा भाई साहब,
हीट जो है तो आपके सराउंडिंग्स में चला जाएगा. तो गैस पार्टिकल्स आर कमिंग क्लोजर. ठीक है. नाउ व्हेन दीज गैस पार्टिकल्स कम क्लोजर, if enough force is applied to the piston, the gas is highly compressed. तो ये highly compressed हो जाएगा गैस. ठीक है. Okay, so the particles of gas get so close together that they start attracting each other sufficiently to form a liquid. ठीक है. So applying pressure and reducing temperature can liquefy a gas. जैसे आपका देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, on applying pressure and decreasing temperature, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा? सॉलिड बन जाएगा. ठीक है. इट विल बेसिकली चेंज इनटू अ सॉलिड. दे आर स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर. हम इसको हाई प्रेशर में स्टोर करते हैं. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट. ठीक है. तो जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, देखो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? ये सबलाइन सॉलिड होता है. सबलाइन मतलब ये सॉलिड से सीधा भाई साहब आपके गैसियस स्टेट में चला जाता है. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट और डिक्रीज ऑफ प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू अ लिक्विड स्टेट. Hence solid carbon dioxide is also known as dry ice. तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ड्राई आइस बोलते हैं. तो विदाउट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड स्टेट, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ गैसियस स्टेट. ठीक है. क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस थिंग्स पीपल? हम